ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ہمیں پھر سے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا اور ہمیں اس میں عبادتیں کرنے اور اس میں اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قیام کرنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اللہم آمین۔ حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، آج ہم خوشی منائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عید نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے یہ عید امن و امان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گہوارہ بنائے، امن و شانتی کا پیغام یہ عید ثابت ہو، اللہم آمین۔ حضرات، میں آپ کے سامنے اس عید کے موقع پر بہت سارے پیغامات لے کے میں حاضر ہو چکا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے ویسے ہی تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان گزر گیا، رمضان کے روزے ختم ہو گئے، لیکن یاد رکھو رمضان کا مقصد باقی ہے۔ رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مقصد ختم نہیں ہوا ہے، رمضان ختم ہوا، روزے ختم ہو گئے رمضان کے، لیکن رمضان کا مقصد باقی ہے، تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ میری ماؤں بہنوں، میرے معزز بھائیوں، تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی یہ اللہ کے خوف کا نام ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کے تعلق سے، کعب احبار ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کعب مجھے بتائیے۔ تو کعب احبار نے کہا کہ عمر، کیا تمہارا گزر کبھی کاٹی دار درختوں کے پاس سے ہوا ہے کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میرا گزر ہوا ہے۔ کہا کہ تم وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ میں کاٹی دار درخت اور ایسے راستے میں اپنے پیر کو پھونک پھونک کے رکھتا ہوں، کہیں کانٹا میرے پیر میں نہ چھپ جائے، کہیں کانٹا میرے کپڑے کو الجھ نہ جائے، دیکھ سنبھل کے چلتا ہوں۔ کہا کہ تقوی بھی یہی ہے۔
तुम तुम्हारी जिंदगी को ऐसे गुजारो कि तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में हजारों गुनाहों के मौके आएंगे। ये सारे गुनाहों के मौकों को छोड़कर गुनाहों के रास्ते में तुम चल रहे हो, तुम्हारे सामने हजारों नफसानी ख्वाहिशात, हजारों गुनाहों के मौके तुम्हें मिलेंगे, बेहयाई के मौके मिलेंगे। ऐसे मौके पर अपने आप को, अपने ईमान को बचा के चलने का नाम तक़वा है। सुभान अल्लाह, इस तक़वे को पाने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंत। ऐ अल्लाह के बंदे, दुनिया में जहां भी रहो, खलवत में रहो, जलवत में रहो, लोगों में रहो, बंद कमरे में रहो, अल्लाह के डर को दिल में बसाओ। अल्लाह ने फरमाया ये चीज तुम्हारे अंदर आएगी, तक़वा आएगा, तुम्हारी जिंदगी में आसमान से रहमतें, बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ने फरमाया वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। कहा कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो करिए वाले अगर तक़वे को इख्तियार करते, अल्लाह के डर को इख्तियार करते, हम आसमान से रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देते। मतलब ये हुआ तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की रहमतों का और अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल हम पे होता है। तक़वा क्या चीज़ है मेरे भाई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछिए तक़वा किसे कहते हैं। इमामुल मुत्तक़ीन थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बैठे हुए हैं, उनका गुलाम एक दूध का प्याला ला के दिया। मेरे भाइयों, इस वाक़ये से अपनी जिंदगी में तक़वे को पैदा करो। एक दूध का प्याला ला के दिया, अबू बकर पीजिए। सवाल यही है, गुलाम की कमाई आका के लिए जायज़ है। गुलाम ला के दिया, भूखे थे, पी लिए। गुलाम ने कहा, अबू बकर हमेशा पूछते थे कोई चीज लाता था तो आज पूछे ही नहीं, दूध पी लिए। कहां से लाया हूं पूछो। कहा कि कहां से लाए हो। कहा कि देखो तुम्हारे पास में गुलाम बनने से पहले मैं कहानत करता था, जादूगरी का काम करता था। एक आदमी को मैंने झूठ कहा कि तेरा फला काम हो जाएगा, तो वो आज मुझे शादी में मिला है, खुशी में उसने दूध का एक प्याला दिया। अल्लाह अकबर। जादूगरी की कमाई हराम थी, वो लाके दे दिया और मैं तुम्हें लाके दे दिया, तुम पी लिए हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के बंदे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फतवा यही है, दुनिया के उलमा फतवा यही देंगे कि फतवा यही है कि कोई आदमी भूले बगैर कोई चीज खा लिया है, अल्लाह उसे माफ करेगा। उसे मालूम नहीं था, लेकिन फतवा अलग था, तक़वा अलग था। तक़वे को अपनाया। अल्लाह के बंदो, यही तक़वे की जरूरत है आज। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उंगलियां अपने मुंह में डाली और वो दूध निकालते रहे, उल्टी करते रहे, यहां तक कि कहने वालों ने कहा कि अबू बकर तुमने इतना उल्टी कर दिया, लगता है कि तुम्हारी जान चले जाएगी। कहा कि लोगों सुन लो, मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, मैं उस वक्त तक उल्टी करता रहूंगा और मैं अपने बदन से वो दूध निकालता रहूंगा यहां तक कि मुझे यकीन हो जाए या मेरी मौत ही आ जाए। क्योंकि अबू बकर के लिए जायज नहीं है कि हराम का लुक़मा थोड़ी देर के लिए उसके पेट में रुका रहे। अल्लाहु अकबर। ये तक़वा होता है मेरे भाई, इस तक़वे को अपनाने की जरूरत है। इसी तरीके से एक मोमिन बंदा, प्यारे नबी ने बड़ी अजीब मिसाल, सही मुस्लिम की रिवायत है, सुहैब सिनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। कितनी अजीम हदीस है मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों, गौर करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतहु सर्राउ शकर फकान खैरन लहु व इन असाबतहु दर्राउ सबर फकान खैरन लहु। कहा कि एक मोमिन की मिसाल बड़ी अजीब मिसाल है। क्या है? एक मोमिन के अलावा किसी के अंदर ये सिफत आ नहीं सकती। क्या है? एक मोमिन खुशी में रहता है, क्या करता है? अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। और जब उसे गम मिलता है, जिंदगी में परेशानियां मिलती हैं, सबर से काम लेता है, बेसबरा नहीं बनता। ये दो सिफतें अल्लाह के बंदों हमारे लिए अज़हद जरूरी है। शाकिर बंदा बनना है, साबिर बंदा बनना है। ये दो अजीम सिफतें रमजान का महीना मुझे और आपको सिखाता है। एक मोमिन बंदा खुशी में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। आज खुशी का मौका है। एक मोमिन बंदा
اور ہم مومن بندے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو خوشی کا موقع ہے اللہ کو ناراض کرنے چلو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کتنے لوگ ہیں, عید کی نماز ختم ہو گئی, جاؤ دیکھو ظہر کی نماز میں کتنے مصلی رہتے ہیں. ایسے لگتا ہے رمضان میں لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں بڑے جوش سے, بڑے جذبے سے, بڑے ولولے سے آئے تھے, لیکن رمضان کے جاتے ہی عید کی نماز کے دن ظہر کی نماز میں مسجدوں کو دیکھو ویران پڑی ہے. اللہ کے بندو, یہ عبادت نہیں, عبادت کا مذاق ہے, یاد رکھیے. اللہ کو ایسی عبادتیں پسند نہیں ہیں. رمضان میں مسلمان بن گئے اور رمضان کے بعد جو ہے نمازیں چھوڑنا شروع کر دیے, اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے. حضرات نماز یہ وہ عبادت ہے, ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑائی ہو رہی ہے, پیارے نبی نے کہا میرے صحابہ میدان جنگ میں بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے, ایک جماعت لڑتی رہے گی, تم ادھر نماز پڑھتے رہو. یہ الگ بات ہے, نماز کی کیفیت الگ ہے, اس کی رکعتیں الگ ہے, جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے, لیکن نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. پیارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. اللہ کے بندو نماز کو ضائع مت کرو. رمضان کے مہینے میں ہم نے نمازوں کا اہتمام, تراویح کا اہتمام, قرآن سے ہمارا تعلق تھا. کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے جاتے ہی ہماری نمازوں میں سستی اور ہماری تلاوت میں سستی نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے عید کا موقع ہے, کتنی خواتین ایسی ہیں جو غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہے, نعوذ باللہ میں آگے بڑھ کے کہوں تو جو ہے غیر محرم ہے, ان سے مصافحہ کرتی ہیں عید کے دن. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرات پردے کا اہتمام کرنا ہے. عید کا موقع ہو, کوئی عید کے موقع پر بے حیائی کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے. مصافحہ نہیں کر سکتے اور ان کے سامنے آ نہیں سکتے. خواتین سے بڑی غلطی ہوتی ہے, عید کا دن ہے, بڑے سجے ہوئے ہیں اور جو ہے رشتہ داروں میں ایسے ہی عام طور پہ آ جاتے ہیں, جن سے پردہ کرنا واجب ہے. یاد رکھیے پردہ ضروری ہے اسلام میں. پیارے نبی بیان دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھے, انصاری صحابی, کہنے لگے اے اللہ کے نبی, پردے کا کچھ بولنا ہے, پردے کا اہتمام کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ افرائیت الحم, جیٹ اور دیور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جیٹ سے اور دیور سے پردہ کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحم والموت, کہا کہ اللہ کے بندو جیٹ سے اور دیور سے تو ایسا پردہ کرنا ہے جیسے تم موت کو دیکھ کے ڈرتے ہو. موت سے بھی زیادہ جو ہے خطرناک رشتہ ہوتا ہے جیٹ اور دیور کا. بھابھی کے سامنے یا جو ہے آپ بھابھی ہے اس کے سامنے جاتے ہیں, شریعت نے کہا کہ آپ کو جو ہے اجازت نہیں ہے ان سے مصافحہ کرنے کی, اور ان کے سامنے جو ہے بے پردگی سے بات کرنے کی, مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور انہیں خلوت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ سب عیدوں کے موقع پر ہوتا ہے. شریعت ہمیں عید کے موقع پر اسلامی تعلیمات کو فراموش کرنے سے ہمیں اجازت نہیں دیتی. تو حضرات ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور دوسری بات, استقامت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ رمضان میں سچے تھے, رمضان کے بعد بھی سچے رہیے. رمضان میں آپ کے دل میں اللہ کا جو ڈر تھا, رمضان کے بعد بھی وہ ڈر ہونا چاہیے. رمضان میں آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے, رمضان کے بعد بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. رمضان میں جیسے آپ کی زندگی اللہ کو ڈر کے گزرتی تھی, رمضان کے بعد بھی ویسے ہی گزرنا, یہ استقامت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رحم اللہ ابا الحیثم, غفر اللہ ابا الحیثم, اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے, اس کے اوپر جو ہے رحم فرمائے. لوگوں نے پوچھا آپ کبھی بھی غفر اللہ ابو الحیثم, رحم اللہ ابو الحیثم پڑھتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ وہ کون ہے ابو الحیثم؟ سبحان اللہ. امام احمد نے کہا بیٹو ابو الحیثم کون ہے بولوں؟ یہ وقت کا جانا مانا سب سے بڑا ڈاکو ہے, سب سے بڑا چور ہے. اس چور کے اوپر رحم کی دعا میں کرتا ہوں. کیوں؟ اس وقت کا سب سے بڑا جانا مانا چور, ڈاکو, ڈکیتی تھا وہ, لیکن چور تو تھا, لیکن اس نے مجھے زندگی میں بڑا سبق سکھایا. وہ کیا سبق ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں فتنہ خلق قرآن مجید کو اللہ کے مخلوق کہلوایا گیا.
जो आदमी मखलूक नहीं कहता उन्हें मारा जाता, उन्हें सजाएं दी जाती। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक हो नहीं सकती, मेरी जान भी चली जाए। और सजाएं देने के लिए मामून की पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। कहा कि तुम्हें मानना पड़ेगा वरना तुम्हें कैद खाने में बंद करेंगे और बड़ी सजाएं देंगे। बड़े बड़े लोग भी जो है उसकी सजाओं से बचने के लिए जो है कुरान मखलूक है बोल दी। लेकिन इमाम अहमद, इमामो अहले सुन्ना, सुन्नत को जिंदा करने वाले, उन्होंने कहा कि कभी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे दलील के साथ बात करो। मामून की पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो अबुल हैसम नामी चोर डाकू आया, आके इमाम अहमद के कान में कुछ बोला। कहा कि इमाम अहमद, आप जानते हैं कि मैं इस वक्त का और इस हुकूमत का सबसे बड़ा जाना माना सबसे बड़ा डाकू और चोर हूं। मैंने हमेशा चोरी की है, डाकाजनी की है, मुझे हमेशा पुलिस पकड़ती और कैद खाने में बंद करती। जब मेरी सजा मुकम्मल होती फिर आता, फिर चोरी करता, फिर सजा मुकम्मल होती फिर आता, चोरी करता। इमाम अहमद, याद रखो, शैतान के रास्ते में मैंने इस्तिकामत दिखाया है। शैतान के रास्ते में मैंने चोरी करने में, गुनाह के कामों में मैंने इस्तिकामत दिखाया है, पाबंदी के साथ काम की है। इमाम अहमद, तुम्हारे लिए बड़े अफसोस की बात होगी, तुम्हारे लिए तुफ होगा, तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो, तुम्हें मारा जाएगा, सजाएं दी जाएंगी, लेकिन अपनी बात से फिरना नहीं। मैं डाकू हूं, तुम्हें अल्लाह के रास्ते में साबित कदम होने का एक जुमला कहता हूं, हौसला देता हूं। मैंने शैतान के रास्ते में इतनी इस्तिकामत दिखाई है, तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं दिखा सकते क्या? वो कहते हैं, जब मुझे सजा देने के लिए ले जाया गया और ऐसे कोड़े मुझे मारे गए, अगर एक कोड़ा भी अगर हाथी को मारा जाता, हाथी भी तड़प उठता। ऐसे कोड़े मुझे मारते थे, लेकिन जब मुझे कोड़ा पड़ता, अबुल हैसम का वो जुमला याद आता। वो कहता था, मैंने शैतान के रास्ते में इस्तिकामत दिखाई है। अरे इमाम अहमद, तेरे लिए अफसोस होगा कि तू अल्लाह के रास्ते में इतनी भी इस्तिकामत ना दिखाया तो। अल्लाह अकबर। ये हमारे असलाफ थे, अल्लाह के रास्ते में उन्होंने इस्तिकामत से काम लिया है। अल्लाह के बंदो, इस्तिकामत अज़द ज़रूरी है। हजरात, सच कहें, एक अहम बात यह भी है, आज ये उम्मत मुस्लिमा जो दर बदर के ठोकरें खा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने पामाल किया है। आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने सुना है, जंग उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा जख्मी हुए, प्यारे नबी का सर फट गया, प्यारे नबी के 2 दांत शहीद हो गए। ये क्यों हुआ? एक छोटी सी गलती, छोटी सी गलती। प्यारे नबी ने जबलुर रुमात पे 50 सहाबा को खड़ा किया, कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब तक मेरा इशारा ना आए वहां से उतरना नहीं। सहाबा जो है प्यारे नबी के मकसद को भूल गए कि अल्लाह के नबी ने इसलिए कहा था कि हम जंग जीतने तक खड़ना है। प्यारे नबी ने कहा, जब तक मेरा हुक्म ना है वहां से नहीं उतरना। जंग वहद में सहाबा ने जीत लिया, जंग को जीत गई जंग पूरी। जीत होने के बाद वो 40 सहाबा, वहां से 50 सहाबा में से 40 सहाबा नीचे उतर गए। कहा कि अब तो जीत हो गई है, अब खड़ने की क्या जरूरत है, उतर गए। इधर से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उस रास्ते पे देखा कि यहाँ कमजोरी है, इधर से आए और पीछे से मुसलमानों पे हमला किया। एक छोटी से नाफरमानी पर इतनी बड़ी सजा मिली। आज हम उम्मत में हैं, कदम कदम पे प्यारे नबी की सुन्नत से बगावत, प्यारे नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं। वो सहाबा जो शराब उनकी गुत्थी में रख दी गई थी, घर में बच्चा पैदा होता है, हम शहद चटाते हैं, वो घर में जिसके घर में बच्चा पैदा होता तो पहले शराब चटाते थे, इसलिए कि शराब की मोहब्बत उतनी थी। इस रास्ते में उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और बड़ी बड़ी शराब की मोहब्बत उनके दिलों में थी। प्यारे नबी ने जब 2 हिजरी में यह ऐलान किया, ऐ मेरे सहाबा, शराब तुम्हें पसंद है, तुम्हें सबसे ज्यादा लजीज है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि यह हराम है, तो सारे सहाबा जिसके मुंह से बाटल लगा हुआ था फेंक दिए। कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक जान बाकी रहेगी कभी फिर ये बाटल अपने मुंह को नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानी होती है। अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि प्यारे नबी की इताअत की जाए, छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल किया जाए।
वही इताअत की वजह से जंग बदर में कितने थे? 313 कहिए, 319 कहिए, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दिया, वो कुव्वत दिया कि वो 313 प्यारे नबी के मुती थे। अल्लाह ने कैसी फतह और कामरानी उन्हें नसीब फरमाया। आसमान से 3000 फरिश्तों को भेज के मदद किया। आज मुसलमान मदद चाहते हैं। आज हालात के तनाजुर में बात कहूं, आज हुकूमत, इक़्तिदार फिरका परस्त लोगों के हाथों में जा चुकी है, फिरका परस्त ताकतों के हाथों में जा चुकी है, और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का सफाया हो जाए। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है, जब कौम गुनाहों पे आती है, बेहयाई पे आती है, उरियानियत पे आती है, अल्लाह उस कौम पे जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। मिसाल के तौर पर आप बनु इसराइल को पढ़िए। बनु इसराइल जब नाफरमानी पे आ गए, अल्लाह ने बुख्त नसर जैसे जालिम बादशाह को भेजा। वो आया, उनकी ईंट से ईंट बजा के छोड़ा, उनकी मस्जिदों में घुस के उन्हें मारा। क्यों? नाफरमानी की वजह से। इत्तेहाद नहीं था उनके अंदर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी को लाजिम पकड़ो, इत्तेहाद को लाजिम पकड़ो। मुंतशिर होने से कोई कामयाब नहीं हो सकते। इस उम्मत का वस्फ है, ऐसे तनाजुर में, ऐसे हालात में गुनाहों को छोड़ो, मुत्तहिद बन जाओ। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होते जो मुसलमान भी एक हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन को। एक हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन को, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। तो हजरात, इत्तेहाद इस उम्मत की अज़हद ज़रूरत है। आज उम्मत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने किरदार को, अपने अखलाक को बनाएं और मुत्तहिद होकर ज़िंदगी गुजारें, जिसमें वाहिद की तरह ज़िंदगी गुजारें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद इज़ा इस्तका मिन्हु उज़वुन साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। कहा कि एक मुसलमान की मिसाल एक जिस्म वाहिद की तरह है। अगर पूरे जिस्म में उसके पैर में भी कांटा चुभता है, उसके पैर में चुभने की, कांटे की चुभने की चुभन को पूरा बदन महसूस करता है। अगर अमेरिका में भी किसी मुसलमान पे जुल्म हुआ है, उस जुल्म का एहसास इंडिया में बैठे हुए मुसलमान को होना चाहिए। ये इत्तेहाद होता है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह की, उसके रसूल की इताअत करो, मुत्तहिद हो जाओ, वरना नाकाम हो जाओगे। तुम्हारी हवा, अल्लाह ताला तुम्हारी हवा उखाड़ के फेंक देगा अगर तुम जो है मुंतशिर हो जाओगे। तो सबसे बड़ा पैगाम ये है उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुत्तहिद होके काम करने की कोशिश करें, मुत्तहिद होके इज्तिमाई तौर पे अल्लाह के सामने तौबा करने की कोशिश करें। वो कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, जिस पे अल्लाह का अजाब आ चुका था। अल्लाह का कानून है, जिस पे अजाब आएगा कभी टलेगा नहीं, अल्लाह का कानून है। लेकिन टला कब? ये पूरी कौम एक जगह जमा होकर इज्तिमाई तौर पर दुआ करने लगी, अल्लाह ने अजाब हटा लिया। इज्तिमाई तौर पे तौबा की ज़रूरत है। हजरात, ईद का मौका है, बातें बहुत है, पैगामात बहुत है, लेकिन याद रखिए, ईद के मौके पर एक सबसे बड़ा पैगाम ये देना चाहता हूँ कि याद रखिए, कितने लोग ऐसे हैं, कोई अपनी बहन से कटा हुआ है, कोई अपने भाई से कटी हुई है, कोई माँ बाप से कटे हुए है, कोई रिश्तेदारों से कटे हुए हैं। अल्लाह के बंदों, ये रिश्ते तोड़ के ज़िंदगी गुजारने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है? एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर आकाहु फौqa सलास लयालिन। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई बहन से जो है 3 दिन से ज़ायद बात छोड़े, जायज़ नहीं है। आपस में सुलह कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो आदमी तवाज़ु इख्तियार करता है, आपके ना चाहने वाले रिश्तेदारों से ईद का मौका है, जाके मिलिए, सलाम कीजिए, ईद मुबारक कहिए, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। उनसे आप जो है ईद की मुबारकबादियाँ दीजिए, अपने दिलों से नफ़रतों को निकालिए। ये ईद का सबसे बड़ा पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या आयतें नाजिल हुई? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे इल्ज़ाम लगाने वालों में मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, सादिक़ुल ईमान थे, लेकिन जो है मुनाफिकों के चक्कर में आ गए।
जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हो गया कि मिस्ताह जो मेरा रिश्तेदार है और महाना जिसे मैं राशन देता हूँ वो जो है मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाता है, कहा कि अल्लाह की कसम आज के बाद से उसे महाना राशन नहीं दूंगा मैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाया वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वल्यअफ़ू वल्यस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। कहा कि अबू बकर जैसी बड़ी शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो इतनी बड़ी कसम खा ले कि अपने रिश्तेदार को जो गलती हो चुकी है उसके बारे में ये कसम खा ले कि उसे माफ़ नहीं करेंगे, राशन नहीं देंगे। क्या अबू बकर पसंद नहीं करते कि अल्लाह उन्हें माफ़ करे? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु चीख उठे, क्यों नहीं है अल्लाह, मैं तेरे रहम व करम का भिखारी हूँ अल्लाह, मैं तो मिस्ताह को आज से ही माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी पे इल्ज़ाम लगाने वाले पे हज़रत अबू बकर ने माफ़ किया। मेरे भाइयों, अपने दिलों को साफ करो। अल्लाह के पास कामयाब इंसान वो है जो क़ल्ब सलीम लेके जाता है। नफ़रतों वाला, हसद वाला, गीबत वाला, कीना कपट वाला, दुश्मनियों वाला दिल आखिरत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज ईद का मौका है, अल्लाह के लिए आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी कमाई में बरकत हो, उसके घर में रहमतें नाजिल हो, मन सर्रहु अन युबद्दिलहु फी उमरिही व अन युज़ाद फी रिज़्क़िही फल्यसिल रहिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिला रहमी करो, सिला रहमी करना चाहिए और हमारे उन रिश्तेदारों तक हमें पहुँच के उन्हें जो है अपने दिलों की जो है जो दुश्मनी थी, जो खलल था, उनसे आपस में जो है दूर कर लेना चाहिए। ईद के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मर्दों को खिताब करते थे, औरतों को भी खुसूसी एतबार से खिताब करते थे। मेरी माओ बहनों, हम जिस माहौल से, जिस ज़माने से गुजर रहे हैं, ये बड़ा ही फितनों वाला ज़माना है, बेहया और उरियानियत का ज़माना है। ऐसे में एक मोमिन खातून के लिए अज़ब ज़रूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे, अपनी नस्ल के ईमान की हिफाजत करे, अपनी नामूस की हिफाजत करे। ये हमारे लिए, हमारी ख़वातीन के लिए अज़ब ज़रूरी है। याद रखिए, तारीख़ पढ़िए, किसी भी कौम की कामयाबी उसकी कौम की ख़वातीन में होती है। जिस कौम की ख़वातीन बन गई उस कौम का उरूज और बुलंद होता है, वो कौम जो है बड़ी रोशन होती है। जिस कौम की ख़वातीन बिगड़ जाती है वो कौम तबाह हो जाती है। आपने देखा नहीं, बनी इसराइल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा हलकत बनु इसराइल, बनु इसराइल के हलाक होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि बनु इसराइल के ख़वातीन फैशन के नाजायज़ तरीक़ों को अपनाया। प्यारे नबी ने हाथ यहाँ रख के पेशानी पे बताया कि वो चौंडे यहाँ बनते थे। फैशन के नाजायज़ तरीक़े ने पूरी कौम को ले डूबा। मेरी माओ बहनों, तुम बन गई तो पूरी कौम बन जाएगी, तुम सुधर गई पूरी कौम सुधर जाएगी। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है कि तुम बिगड़े हुए शोर को बना सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो ताकत दी है, बिगड़ी हुई औलाद को तुम सुधार सकते हो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो कुव्वत दी है, वो सलाहियत दी है कि तुम एक बेहतरीन कौम को जो है तुम बना सकती हो। इब्ने हजर को बनाने वाली कौन थी? इब्ने हजर की बहन थी। और हजरत इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने वाली कौन थी? उनकी माँ थी। बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों को पढ़ो, उनकी जिंदगियों को बनाने वाली कौन थी? हजरत इस्माइल को इस्माइल बनाने वाली कौन थी? उनकी मां हाजिरा थी। तो मेरी माओ बहनों, तुम अगर सुधर जाएंगी, तुम बन जाएंगी, अपने घर का माहौल दीनदार बनाएंगी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हमारा पूरा माहौल बन जाएगा। अगर तुम बिगड़ जाएंगी, तुम्हारे अंदर बेहयाई और यानियत बेपर्दगी आएगी, तो याद रखो ये तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारी नस्लों तक ये नुकसान पहुंचता है और तुम्हारी पूरी नस्लें बिगड़ जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खातून इन्नल मरअता सल्लत खम्सहा, एक खातून 5 वक्त नमाज का एहतमाम करे, वो साम शहरहा, रमज़ान के महीने के रोज़े का एहतमाम करे, वह हसनत फरजहा, अपने नामूस की हिफाजत करे, पर्दे का एहतमाम करे, वो बालत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो अपने शोहर का एहतराम करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। ये 4 सिफतें किसी औरत के अंदर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह खोलता है, वो जिसमें से चाहे दाखिल हो सकती है। मर्दों के लिए जिम्मेदारियां बहुत है, खवातीन के लिए अल्लाह ने कम अमल रखा है, कम अमल में उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खवातीन को खिताब करते हुए, अय गुरो है खवातीन, यानी वहाँ बैठी हुई खवातीन नहीं, क़ियामत तक आने वाली खवातीन से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें जहन्नम में तुम ज़्यादा जा रही हो।
ख़वातीन ने पूछा अल्लाह के नबी क्या खराबी है औरतों में? तुकफिरन अल-लान व तकफुरन अल-आशीर, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बुराई ये है कि तुम ज़बान का गलत इस्तेमाल करती हो। गीबत है, दो ख़वातीन मिलती है, गीबत है, चुगलखोरी है। याद रखिए दुनिया का बदतरीन गुनाह है चुगलखोरी और एक दूसरे की गीबत करना। और जो है तुम बात बात पे लानत बेचती हो, और दूसरी बुराई तुम्हारी ये है कि तुम शोहरों की बड़ी नाफरमान निकली हो। तो ज़बान का सही इस्तेमाल करना और शोहरों का एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये ख़वातीन की जिम्मेदारी है, अपनी औलाद की सही तरबियत करना। हज़रात बातें बहुत हैं, अज़्ज़ ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में हम ये जो कुछ तालीमात सुने हैं अपनी ज़िंदगी में हम लाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं हम शव्वाल के महीने में आ चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि शव्वाल के महीने में 6 जो रोज़े रखेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखता है काना कसियामी दर, गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रख ली। अज़्ज़ ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूरी नहीं कि लगातार रखें आप, ज़रूरी नहीं पूरे महीने में आप जभी भी चाहे रख सकते, 6 रोज़े रखना है। और सबसे अहम बात और आखिरी बात बता के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदो, जो लोग रमज़ान के महीने को आम दिनों की तरह गुजार दिए, रमज़ान में न तरावी नहीं, न क़ियाम नहीं, न रोज़ा नहीं, न तिलावत नहीं, अल्लाह की याद नहीं, ऐसे ही रमज़ान को गुजार दिया और ईदगाह में आ गए, नमाज पढ़ लिए, समझ गए कि ख़त्म हो गया। नहीं, अल्लाह के बंदो, रमज़ान के महीने के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया जो आदमी रमज़ान के महीने को पाकर भी आम तरह से गुजारता है अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, प्यारे नबी ने आमीन कहा। कितनी बड़ी वईद है, हमारे सामने मौका है। अल्लाह के बंदो, अगला रमज़ान मिले या ना मिले अल्लाह जानता है, लेकिन इसी ईदगाह में आप बैठे हुए हो, यहाँ से तय कर ले कि अब से मुझे जो गलती हो चुकी है यहाँ से तौबा करके उठे कि यहाँ से मेरी बकिया ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरेगी। तौबा करके उठे, आइंदा साल अल्लाह मुझे रमज़ान देगा, पूरे रमज़ान में जो है मैं पूरी बेहतरीन अंदाज में इबादतें करूँगा और बकिया मेरी ज़िंदगी इबादतों में गुजारूँगा। यह आहद करके उठे। अल्लाह के तौबे का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। जब मौत के मुंह में जाओगे, मौत के नरगे में चले जाओगे, तौबे का मौका नहीं दिया जाने वाला है। लेकिन मैं नहीं जानता और आप नहीं जानते कि मौत कब आने वाली है। मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए तौबा कर लो और अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करो। इन्हीं बातों पे अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को, परवरदिगारा जो कुछ हमने बातें कही है, सुनी है, अल्लाह हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह में रमज़ान में जो कुछ इबादतें की हैं, अल्लाह हमारी इबादतों को तो कबूल फरमा। अल्लाह हमारी तिलावत को कबूल फरमा, हमारे क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह हमें जो कोई बीमार है, परेशान हाल है, अल्लाह हमारी बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें कोई कर्जदार है, अल्लाह उसकी कर्जदारी को जो है अदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया तो नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो कोई आदमी बीमारियों में मुब्तला है और घर के बड़े बड़े परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह उनकी परेशानियों को और उनकी बीमारियों को, उनके कर्ज को दूर फरमा। अल्लाह हमें जो कोई आदमी दीन से दूर है, नमाज से दूर है, अल्लाह हम तमाम को नमाज से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमा, दीन से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमा। वो ख़वातीन जो दीन से दूर है, अल्लाह उन्हें दीनदार बनने और अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो कोई आदमी अभी गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे सामने थे, हमारे साथ सजदा करते थे, नमाज पढ़ते थे, रुकू करते थे, अल्लाह आज वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को तो नूर से भर दे। अल्लाह उन तमाम को जो है आला इल्लिय्यीन में जगह नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम को जो कुछ तूने ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी में अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेरी इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम का हुस्न ख़ातिमा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ ऐलान है, आप बैठिए।